پڑ گیا جس سے آدھا کے سینے میں غار، حشمتی شیر پیش ہے سنت کا وار، بچ کے جانے نہ پائے وہاں بھی شکار، ضرب صدر الشریعہ ہے باطل شکن، یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام دوست احباب سنی مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، میں ہمیشہ اس چینل پہ وہابی دیوبندی کے تعلق سے میں یہ آڈیو آپ لوگوں کو پیش کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے یہ جانا ہوگا کہ یار یہ صرف لڑنے جھگڑنے کا مطلب ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے میرے دوست۔ بات ایسا ہے، وہابی دیوبندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام اور بزرگان دین کی شان میں توہین کرتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ دیوبندی وہابی سے بات کرتے ہیں، اس کے عقیدے کو جانتے ہیں۔ وہ عقیدہ جو وہ بولتا ہے ریکارڈ کر کے ہم آپ لوگوں کے بیچ یہ آڈیو پیش کرتے ہیں۔ ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہیں زمین کا جھگڑا ہے، نہیں جائیداد کا جھگڑا ہے، نہ ہی یہ ہمارا کچھ لے کے ہے۔ ہمارا صرف جھگڑا ہے نبی کی شان اور شوکت کے لیے، تمام اولیاء کرام کے لیے، تمام بزرگان دین کے لیے، باقی اور کسی چیز کا جھگڑا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ حضرات اس چیز کو غور کریں۔ کون بھائی جان؟ جی کون؟ ابھی تو آپ کا فون آیا تھا، تو آپ بتائیں گے کون ہے آپ؟ اچھا، مفتی غالب صاحب بول رہے ہیں کیا؟ جی نہیں، میں مفتی نہیں ہوں، میں مولانا ہوں۔ آپ تو بتا رہے تھے کہ مفتی ہیں آپ۔ نہیں، میں مفتی نہیں ہوں اور میں نے بتایا بھی نہیں ہے۔ نہیں بتایا تو تھا یار، چلیے خیر کوئی بات نہیں ہے۔ جی بتائیے آپ۔ جی حضرت، تو آپ نے وہ میں نے آپ کی کلپ سنی تھی اور آپ نے کسی اور سے بھی پہلے ڈیبیٹ کی تھی، جی تو میں نے سوچا حضرت سے بات کی جائے، معلوم کر لیا جائے۔ آپ نے حضرت ایسے کیسے اعلیٰ حضرت کو جو ہے مشرک کہہ دیا کہ وہ مشرک ہیں اور میں ان کو مشرک ثابت کر دوں گا؟ آپ کا سم کون سا ہے؟ جیو کا؟ ہاں جی جیو کا ہے۔ آپ کا؟ اچھا جی، ہاں پھر تو بات کریں۔ کیا کہا آپ نے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف ایک جو ہے غلط الزام لگایا، جو کہ انہیں آپ نے کہا تھا کہ وہ مشرک ہیں، ان کے عقائد مشرکانہ ہیں۔ جی ایسے حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو کیسے جو ہے آپ کہہ رہے تھے؟ یہ پروگرام آپ اونلی اجہر کی جانب سے آپ جو ہے اس کی وضاحت چاہتے ہیں؟ نہیں وضاحت نہیں چاہتا ہوں، تو وضاحت تو آپ کی ہو گئی۔ آپ نے جو ہے مولانا مشتاق صاحب اور مولانا حافظ احسان صاحب قبلہ کے سامنے جو ہے آپ کی ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ نہیں، احسان قادری سے تو ہماری بات ہو نہیں پائی، البتہ نیٹ بہت پرابلم کر رہا تھا۔ ہاں البتہ ان سے جو ہماری بات ہوئی ہے پرسوں کا مناظرہ، تو وہ اب تک اس کو جو ہے اپلوڈ نہیں کر رہا ہے اب تو، اور میری امید ہے کہ شاید وہ کرے گا بھی نہیں، لیکن اب تک تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کیوں نہیں کر رہا ہے۔ تو اگر اس کو اپلوڈ کر دے اس مناظرے کو جو پرسوں یعنی 28 مئی کو ہوا ہے ان کے ساتھ لائیو مناظرہ، تو وہ اس کو اپلوڈ کر دے تو ساری بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ وہ بھی ہوگا انشاءاللہ، وہ بھی ہو جائے گا۔ ہاں تو پھر آپ کو اس میں ساری وضاحت مل جائے گی، اور اگر نہ بھی ملے تو پھر میں لائیو آ جاؤں گا ان کے ساتھ اور پھر انشاءاللہ ساری باتیں۔ مگر آپ کے کوئی مفتی صاحب ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ علماء دیوبند سے تو ضرور ہیں مگر میں ان کو جو ہے مناظر نہیں مانتا۔ ہاں تو بہت ہو سکتا ہے بھائی، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ مجھے نہ مانے کوئی، مولانا بھی نہ مانے تو اس سے مجھے کیا لگا؟ آپ کی جماعت کے عالم ہیں؟ ہاں میری جماعت کی، یقیناً وہ مجھے غلط سمجھتے ہوں گے، ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی یا ان کو میرے اندر کوئی کمی نظر آئی ہوگی۔ کیا میں کمی سے پاک ہوں؟ میرے اندر ہزاروں کمیاں ہو سکتی ہیں۔ ہاں وہ اس چیز کو دیکھ کے کہہ رہے تھے، جیسے آپ جو ہے نا بات نہیں کر پا رہے تھے
हाँ, तो यकीनन उनको लगा होगा कि उनके अंदर ज्यादा इल्म होगा, उनको लगा कि ये बात नहीं कर पा रहा है, तो इसमें भी कोई वैसा ही कह रहा है हमारा भाई। जी, तो हजरत आपको नहीं कहना चाहिए था, जब आपके पास पूरे दलाइल नहीं थे तो आपको नहीं कहना चाहिए था ऐसा कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह काफिर हैं। तो आपके पास दलाइल हैं, आपके पास दलाइल है तो आप मुझे बता दीजिए कि जो है अहमद रजा इस्तियानत बगैर के जवाज के कायल नहीं है। मैं रुजू कर लेता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं खुद वो शख्स हूँ जो 15 साल से ज्यादा देवबंदियों में रह चुका हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। मैंने देवबंदियों के मदरसे में जो है पढ़ा था, तालीम हासिल की थी, मैंने कायदे से वहीं पढ़ा। ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम आने की वजह से, परेशानी आने की वजह से क्या सिखाया आपको देवबंदियों ने? देखिए, सिखाया नहीं सिखाया वो तो बात की बात है। आपको वहाँ कौन सी गलत बात बताई गई? वो तुम, अच्छा मैं भी देवबंद मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ, देवबंदियों के मदरसे से, तो मुझे भी तो बताएं, क्योंकि ये तो मुझे भी बताते। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा, क्या उन्होंने कहा कि हम आपको, किसी देवबंदी ने कहा था कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, हम सलाम को नहीं मानते, हम दरूद को नहीं मानते, हम फातिहा को नहीं, किसी ने बताया था? हमें तो सारे देवबंदी ने हमें सलाम बताया, सलाम सिखाया, दरूद सिखाया, सब कुछ जो है सारी चीजें हमें देवबंदी ने सिखा। मुफ्ती गालिब साहब, तुम फिर आप फिर कौन से देवबंदी से पढ़ लिया? इस पर है ही नहीं। तो फिर इख्तलाफ तो इस पर है कि जो अंबिया इकराम और जो है औलिया इकराम की शान में तौहीनें की गई हैं और उनकी शान व अज़मत को घटाया जाता है। ऐतराज तो इन बातों पर है हमारा। उनकी अजमत को बढ़ाना तो हमको उन्हीं ने सिखाया है। आप भी उसी मदरसे से पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने, तो फिर आप बताइए, आप अगर आप खुद आपने कहा कि आप उनसे पढ़े हुए हैं, तो आप किस जुमरे में जाएंगे? सुनिए, अच्छा, तो आपको मानना पड़ेगा कि आप इतने साल तक आप गलतकारी किए, या आपने हराम खाया, या आपने जो इतने साल तक की आपकी नमाजें जो है गई, सब कुछ आपको दोहराना पड़ेगा। अच्छा, कम इल्मी पे, इल्म ना होने पे फतवा लगता है? बिल्कुल। तो फरिश्ते पे कौन सा फतवा लगेगा? किस चीज के बारे में? मैंने आपसे पूछा कि कम इल्मी की वजह से फतवा लगता है। किसी को इल्म नहीं है, मुझे इल्म नहीं था, मैं उन लोगों में था, और जब मुझे इल्म हो गया कि, तो किस बात का आपको इल्म नहीं था? इस बात ना पर अगर आपको इल्म नहीं था, मिसाल के तौर पर आपको इल्म नहीं है कि आपका वजू है कि नहीं, आप यही समझते हैं कि आपका वजू है, लेकिन अब जबकि आपको इल्म हो गया कि आपका वजू नहीं था, तो आपको नमाज दोहरानी होगी कि नहीं होगी? फतवा तो लगेगा ना कि आपको नमाज दोहरानी होगी। नमाज का अलग मामला है, नमाज का अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। सुनिए, हर चीज का नहीं, अच्छा, आप नमाज का अलग हो गया, आप लोग का तो वही हो जाता है कि हर चीज अलग हो जाता है बाद में। बहरहाल इख्तलाफ जो है हजरत इन चीजों पर है कि मौलाना अशरफ अली थानवी ने, मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब ने, मौलाना कासिम नानोतवी साहब ने अंबिया इकराम और औलिया इकराम की शान व अज़मत को घटाया है, उनकी शान में तौहीनें की है। हाँ, तो कौन इस वजह से वो लोग दायरे इस्लाम से खारिज हैं। मानता है? तो ये आपकी बात है ना मेरे भाई। आप भी खारिज करेंगे? नहीं, आप जरा दिमाग से हाजिर होकर सोचिए। आप जो कह रहे हैं कि अशरफ अली थानवी साहब ने ऐसा लिख दिया या उसने घटाया, तो आपकी इस बात को आपके अलावा कौन मानता है? हम मानते हैं, हम देवबंदी, हम तो नहीं मानते। हम तो बोलेंगे कि भाई वो अशरफ अली थानवी तो दूर की बात है, एक आम इंसान जो हमारी सड़क में जो कभी नमाज नहीं पढ़ता, वो भी नबी के बारे में ही सुन के ही वो होश बगोश हो जाता है, तो वो नबी की शान को घटाना चाहेगा? ये तो इनके बदतर इंसान है जो किसी मुसलमान के बारे में ये ख्याल करे कि वो नबी, अरे भाई, जो नबी की शान तो दूर की बात, नबी के शहर के एक पत्ते की भी अगर जरा से भी तौहीन कर दे तो वो तो अबदुल आबाद के लिए काफिर और जहन्नमी हो जाता है। उसको पूरी उम्मत उसको माफ करना चाहे तो भी नहीं माफ कर सकती, उसके लिए कत्ल है, उसके अलावा कोई है। तो जो अहले सुन्नत का इमाम है, उसके मुतालिक कैसे ये कोई तस्वर कर सकता है? ये तो इंतहाई दर्जे की, परले दर्जे की जहालत है। यही सबसे बड़ी बदभ्रांति है बरेलियों की, जो हम नहीं मानते। और यकीनन हमारा दादा, यकीनन हमारा दादा, हमारे बाप, अगर नहीं तो मैं आपको एड्रेस देता हूँ, यहाँ आप कटिहार जिला फलसला दलकुला नाम है, आप आ जाएं और मेरे वालिद साहब से मालूम करें कि उन्होंने बरेलवी से तौबा की कि नहीं की। ठीक है, अभी भी मेरे चाचा लोग बरेलवी हैं, तीन भाई हमारा अशरफिया से फारिग है, और हम लोग 2 मज़ाहिर से फारिग है, 3 मज़ाहिर से फारिग है। ठीक है, माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात कही आपकी। सिर्फ हमको कोई देखिए, हमको जो है ना भाई,
मेरे भाई हमको कोई आपत्ति नहीं था। मसाइल इख्तलाफ तो उरूज का जरिया है, लेकिन हमने जब देखा कि भाई हम तो आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, हमने आपको ये कहा कि आप इस्तिआनत बिगैरिल्लाह के जवाज के कायल हैं, तो आप अगर कहें कि नहीं हम कायल नहीं है तो हम अभी से तौबा करते हैं कि नहीं भाई हमने एक गलत आदमी को कह दिया। लेकिन आप जो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई हम तो आपके इल्जाम को सिरे से खारिज करते हैं, हम तो कहते हैं नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये काम कौन कर सकता है। अब रही बात है कि आप हमको दिखाएंगे कि भाई फलाने इबारत में तो इबारत में जो लिखा है वो मतलब आप अखज़ करते हैं ना, वो मतलब तो हम लेते ही नहीं, कोई मुसलमान ले ही नहीं सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम आपको अभी मलफूजात की इबारत अगर आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप में आए और अहमद रजा की ऐसी ऐसी इबारत उलमा नबियों की शान में गुस्ताखी आपको सेंड करूंगा, तो क्या आप मानेंगे? आप हरगिज़ नहीं माने। तो आला हजरत के पहले आप ही जो है गुस्ताखी साबित कर दीजिए, मैं फिर बात मैं तो आपके ग्रुप में मैं भेजा था, ये मुश्ताक अहमद जो है उसने मेरा नंबर वहीं से लिया था। मैंने उनसे कहा था कि ये अहमद रजा की जो अंबिया की शान में जो गुस्ताखी की है इबारत पर बहस कीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं हम इस पर बहस नहीं करेंगे। आपने उनको मुश्रिक कहा, पहले हम उन पर बहस करेंगे। हम कर लीजिए आप, चलिए आप ही की बात। तो फिर बाद में उन्होंने कभी कहा है कि बाद में हम उस पर इबारत पर मुनाजरा करेंगे। मैं कहा ठीक है आपकी मर्जी है, कर लीजिए, ठीक है। आपकी बात तो हो गई। आप इतनी मेरे भाई आप इतना समझदार अगर हैं तो आप समझिए कि जो आप जो भी इल्जाम लगा, जो बात अगर सच है जिसको हम मानते हैं, जो हमारा अकीदा है, तो वो हम तो पूरी दुनिया के इंसान से नहीं डरेंगे, तो आपके से क्या डरे। लेकिन जो इल्जाम है तो वो इल्जाम है। आप कहेंगे नबी की शान को घटाते, मैं कहूंगा नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये तो हमारे जो एकदम जो हमेशा शराब में धुत रहता है वो भी कभी तो नबी तो आला चीज है। एक मौलवी का भी नाम सुनता होगा, नहीं भाई हमारे मोहल्ले का मौलवी, उसकी तौहीन नहीं करना चाहेगा तो वो इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन की कोई तौहीन कर सकता है? यार कैसे अपने मौलवियों की बात मान लेते हो। मुझे देवबंदी मदरसे से मैं पढ़ के आया तो मुझे सबसे बड़ी ऐसी बात पर हैरानी हुई कि भाई हमें तो वहाँ ताजीम सिखाई जा रही है और ये हमें कह रहा है कि तुम तनकीस करते हो। हमें तो वहाँ दरूद सिखाया जा रहा है, ये कह रहा है तुम दरूद नहीं पढ़ते हो। हमें तो वहाँ सलाम पढ़ाया जा रहा है, ये कह रहे हो तुम सलाम नहीं पढ़ते हो। तो मैंने कहा कि इसका मतलब ये कि झूठ पर ये गाड़ी चलती है, झूठ पर ये गाड़ी चलती है। आपकी बात जो सच है, आपकी बात पूरी। हाँ फरमाएं आप। चलिए, बहुत टाइम से आपकी माशाल्लाह गुफ्तगू सुन रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगा आपके मुंह से ये सुनकर कि उलमाए देवबंद के जो लोग हैं वो और एक शराब पीने वाला इंसान भी जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन नहीं करेगा। तो रसूल पाक तो बहुत ऊंची भाई, उनके अदना गुलाम गौसे आजम की भी अदना गुलाम अदना मुरीद की कोई तनकीस नहीं कर सकता। ये तो खामखा हमें वक्त ज़ाय करना पड़ता है ऐसे लोगों के साथ बात करके। चलिए तो सुनिए, आप चुप भी रहिए हजरत, जितना मैं पूछूं आप उतना ही जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपको कम से कम 5-6 मिनट हो चुके हैं बोलते हुए, है ना। अब मुझे भी वक्त, मतलब मेरा कहने का मेरे दोस्त आप कितना बोलेंगे, मुझे भी वक्त दोस्त हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आप मुझसे ऐसी बात करें जिसके हम खुद कायल हैं। जी, उसी चीज से मैं बात करूंगा इंशाल्लाह, और मैं ये साबित करूंगा कि आप खुद अपने मुंह से क्या कहें ना कहें वो आपकी मर्जी है, मगर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर का जो पत्ता है उसकी भी तौहीन करने वाला इंसान मुसलमान नहीं, आपने यही कहा था। बिल्कुल अबदुल्लाबाद जहन्नम है, बिल्कुल माशाअल्लाह। अच्छा हजरत, जैसे हर इंसान किसी न किसी माँ का बेटा है, बिल्कुल है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है, और आदम अलैहिस्सलाम के। हाँ, मतलब यहाँ आदम अलैहिस्सलाम की बात नहीं चल रही है, हम मतलब यहाँ इस वाली बात को कर रहा हूँ। चलिए नहीं, आपने हर इंसान कहा तो वो भी इंसान है, बहरहाल आप बात करें, कोई बात नहीं। बहरहाल मैं आदम अलैहिस्सलाम को नहीं कह रहा हूँ, नहीं कह रहे थे। चलिए सही बात है। चलिए। और एक आपके आलिम से मैंने ये बात पहले ही कह दी थी, मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम को मत कहना, कभी मेरे ऊपर जो है इल्जाम लगा दो कि भाई तुमने आदम नहीं, मैं आपकी मतलब को मानूंगा, ठीक है। आपने कहा मेरी वो मुराद नहीं है, मेरी मुराद ही नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब ठीक, हर बच्चा, हर आदमी, हर इंसान जो है, मैं आदम अलैहिस्सलाम को नहीं बोल रहा हूँ, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो है बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। जरूर अब मुद्दे पे आए। तो हर बच्चे की माँ उसकी माँ है, और उसके बाप की बीबी है, उसके बाप की जो है वो जोजा है, उसके बाप की जोरू है, ठीक है। मगर कोई बच्चा अपनी माँ को इस तरह नहीं पुकार सकता, ओ मेरे बाप की बीबी, ओ मेरे बाप की जोजा, ओ मेरे बाप की जोरू, ओ मेरे बाप की शरीक हयात, मुझे खाना दे दे, पानी दे दे, कुछ भी दे दे। या कह सकता है? कह सकता है या नहीं? नहीं कह सकता, जाहिर सी बात है। कहेगा, अगर इस तरह कहेगा तो वो माँ क्या कहेगी उसको?
कहीं भेद भी है, बहरहाल आप आगे फरमाएं। बेहद भी है ना। अच्छा, ऐसी जो बात- गैर आदमी सुनेगा वो भी कहेगा कितना नालायक बच्चा है कि अपनी माँ को इस तरह से बोल रहा है। तो ये आगे गुस्ताखी है, बेहद भी है माँ की शान में। बिल्कुल, ये अदब का बिल्कुल, जुमला नहीं है, ये अदब के खिलाफ है बिल्कुल या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है, आगे फरमाएं आप। माशाअल्लाह। अच्छा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में जर्रा बराबर बेअदबी या जर्रा बराबर तौहीन, गुस्ताखी का अल्फाज, उनकी शान अज़मत को घटाने वाला अल्फाज भी कुफ्र है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल कुफ्र है ना? बिल्कुल, हाँ जी माशाअल्लाह। जब अच्छा, ये बात सच है कि नहीं है कि वो उसके बाप की जोरू है? बिल्कुल सच है, सच है ना, इसमें कोई शक तो नहीं है ना? कोई शक नहीं। जी, मगर ये अदब के खिलाफ है। माँ भी उसके ऊपर चिल्लाएगी और जो दूसरे लोग सुन रहे होंगे वो भी चिल्लाएंगे। ये सारी बात है, ये मुद्दे का आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ आपने कहा कि उलमाए देवबंद का बच्चा बच्चा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत करता है, हुजूर की तारीफ करता है ना? हुजूर की शान तो क्या, हुजूर की शान तो बहुत बुलंदो वाला है, बहुत बुलंद। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक का मज़ार है भाई, तो उस पर और कलाम क्या करना है बताइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपने कह दिया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत तो बहुत बुलंद वाला है, रसूल पाक के शहर के पत्ते की भी अगर तौहीन करेगा तो वो मुसलमान नहीं है, काफिर है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मुफ्ती साहब, मैं आपको ये कहूं कि जैसा इल्म मुफ्ती साहब का है, यानी मुफ्ती गालिब साहब, जैसा इल्म मुफ्ती गालिब साहब का है, ऐसा इल्म तो जो एक कायदा पढ़ने वाला बच्चा है ये भी रखता है। ये मैं आपकी शान बयान कर रहा हूँ या आपकी तौहीन कर रहा हूँ? मैं आपकी शान बयान कर रहा हूँ या आपकी तौहीन कर रहा हूँ? कैसा जुमला? जैसा इल्म मुफ्ती गालिब साहब का है, ऐसा इल्म तो जो ये बच्चा कायदा पढ़ रहा है, यस्सरनल कुरान पढ़ रहा है, ऐसा इल्म तो ये भी रखता है, ऐसा इल्म तो इसको भी है। मौलवी गालिब की इसमें क्या जो है बड़ाई है? जी, ये आपकी मैं तौहीन कर रहा हूँ या तारीफ कर रहा हूँ? कि बच्चे के बारे में बोल रहे हैं? जी, बच्चे के बारे में बोल रहा हूँ जो कि अभी कुछ भी नहीं जानता, अभी तो उसको कुरान भी नहीं पढ़ने आता, मगर मैं कह रहा हूँ जैसा इल्म मुफ्ती गालिब साहब का है ऐसा इल्म तो ये बच्चा भी रखा है। आपको जो है ना मेरे भाई, आपको ये इतनी देर का टाइम लेकर के ये बात कहने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? आप जो है जिस तरह आपने कहा ना कि अल्फाज इस तरह बोलने से क्या होता है, मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाता हूँ क्या होता है। नहीं हजरत, बस मुझे बताइए मैंने आपकी तारीफ की है या तौहीन? अल-मलफूज में सुनिए हजरत, पहले मेरी बात देखिए, मैंने आपकी बात को कम से कम 5-6 मिनट लगातार सुना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुना जी। जब मैंने आपकी बात को सुना प्यार मोहब्बत से, तो अब मेरी भी बात को सुनिए और जवाब दे दीजिए, फिर इंशाअल्लाह आप अपने आगे बताइए, फिर मैं आपकी बात को सुनूंगा, ठीक है? अच्छा हाँ ठीक जी है। हाँ। तो मैंने देखिए, अगर मेरे दिल में आपकी मोहब्बत होती तो मैं कहता कि मुफ्ती गालिब साहब बहुत अच्छा इल्म रखते हैं, बहुत काबिल आलिम है, बहुत अच्छे आलिम है, बहुत इल्म है मुफ्ती गालिब साहब को, और इनसे भी ज्यादा इल्म जो है इनके बड़ों को है, और उनसे भी ज्यादा इल्म और उनके बड़ों को है, और उससे भी ज्यादा अशरफ अली थानवी साहब को है। सारा माल समझ गया, सारा बिल्कुल समझ गए होंगे, मुझे मालूम है कि आप मुफ्ती हैं और मुनाजिर हैं आप, तो बिल्कुल समझ गए होंगे, मगर ये बताइए मैंने ये आपकी तौहीन की है या तारीफ? लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपने न हिफ्जुल ईमान पढ़ी है और न उस इबारत को देखा है, आपने सुना होगा सिर्फ, ठीक है? आप कैसे कह रहे हैं कि मैंने सुना होगा? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका जुमला बता रहा है, आपका अंदाज बता रहा है। पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि मैंने आपकी तौहीन की है या तारीफ की है? मैं तौहीन की है। तौहीन की है ना? बिल्कुल। अरे नहीं यार, तौहीन क्यों की है? तौहीन कैसे कर दी हजरत मैंने आपकी? बताइए क्यों, कैसे की है? अगर कहाँ तौहीन की है आपकी? अगर आप मेरे इल्म की तौहीन करने मकसद है आपको, तो तौहीन की है आपने। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप तो बहुत बड़े काबिल आदमी हैं। देखो, मुफ्ती जो होता है, आलिम जो होता है, उसकी बहुत बुलंदो बाला शान होती है, और एक बच्चा जो है अभी तो वो कुछ भी नहीं जानता बेचारा, अभी तो उसको कुरान भी सही से नहीं पढ़ने आता है कि नहीं है? मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि आपने वो इबारत नहीं देखी है। बहरहाल मैंने सब कुछ देखा है इंशाअल्लाह। तो आपने अगर देखा, अब सुनिए, अगर आपने देखा है वो इबारत, मैं आपको बताता हूँ तौहीन अल्फाज क्या होते हैं। ये अरे हजरत पहले मेरी बात को फिर लगातार सुनिए, फिर अपनी बात आगे बताना। पहले मेरी बात को सुनिए आप।
मुफ्ती साहब ऐसे बात नहीं होती है ना। जब मैंने आपकी बात को सुना लगातार तो आप भी सुनिए मेरी बात को मुफ्ती साहब। आपने एक मिसाल दी ना हजरत। मुफ्ती गालिब साहब देखिए, मैं पहले अपनी बात पूरी कर दूं। आप बहुत सारी बातें बताते रहे, मैं सुनता रहा। मैंने बीच में कई जगह ये भी, जब आप रुके तो मैंने ये भी कहा कि आपकी बात हो गई पूरी, फिर आप नहीं रुके तो फिर मैं सुनता रहा, है ना। आप अब मेरी बातों का सिर्फ जवाब देते रहिए, फिर आप अपनी बात आगे बताना मुफ्ती साहब, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि जैसा इल्म मुफ्ती साहब का है, मुफ्ती गालिब साहब का है, ऐसा इल्म तो छोटे से बच्चे का भी है। तो ये आपकी तारीफ है या तौहीन है? तौहीन है, सही बात है, तौहीन है। मगर यही तौहीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुफ्र है या नहीं है? नहीं, ये उस सूरत में तौहीन है कि अगर उस बच्चे को वाकई मेरी तरह इल्म अगर नहीं है तब तनकीस है। लेकिन अगर जिस बच्चे के बारे में आप कह रहे हैं कि ऐसा इल्म जैसा गालिब के पास है, ऐसा इल्म तो उस बच्चे के पास भी है, तो अगर वाकई में उस बच्चे के पास मेरे जैसा इल्म है तो फिर मेरे इल्म की कोई तौहीन नहीं है। उसके पास तो कुछ भी इल्म नहीं है। वो तो बेचारा भी कायदा ही पढ़ रहा है, यस्सरनल कुरान ही पढ़ रहा है, उसको तो अभी कुरान का पारा भी नहीं पढ़ने आता, और उसमें भी वो भूल जाता है, हरफ भी नहीं बनाने आते उसको, कभी ज़ेर भूल जाता है, कभी जबर भूल जाता है। हाँ, तो जो मेरे से जो तशबीह देता होगा तो इसका मतलब ये है कि वो वाकई में इल्म की तौहीन कराई, या वो मुझे ये समझता होगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा, ये वाकई तौहीन है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है ही क्या। लेकिन वाकई मुफ्ती, देखिए अब एक बात बता दूं, खाली हाफिज जाहिल है या नहीं है? कहते हैं लोग, नहीं कहते हैं? खाली हाफिज को लोग जाहिल कहते हैं कि नहीं कहते हैं? नहीं, ये आप इतना क्यों बातों को घुमा रहे हैं? मैं तो आपको कह रहा हूँ ना कि हिफ्जुल ईमान में इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मुझे आपने ये कह दिया कि ये तौहीन है, हाँ ठीक है, बिल्कुल। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म पाक की तौहीन करते हुए क्या लिखा है मालूम है आपको? रब्बे कायनात की कसम, अगर मौलाना अशरफ अली थानवी ने अभी कहा है ना जी, तो मैं ऐलान, अगर मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने ये लिखा है, ये नहीं कहा है कि ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये जो किताब है हिफ्जुल ईमान जिसका आप नाम ले रहे हैं, हाँ, ये किसकी लिखी हुई है, थोड़ा बताएंगे आप? किसकी लिखी है बताइए? आप ही बताइए। ये आप पढ़ के आए हैं ना, वो तो हमारे घर मैं तो पढ़ के आया हूँ, मेरे पास है किताब। तो फिर बताइए क्या है हिफ्जुल ईमान, क्या है बताइए? मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये किसकी किताब है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस इबारत पर अव्वल तो ये है कि जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हिफ्जुल ईमान मेरे पास यहाँ भी रखी हुई है। अच्छा चलिए, तो हिफ्जुल ईमान उठा लीजिए आप, सुनिए मुझे बता दीजिए। मैं वो नहीं देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि आप अगर इस इबारत को गलत समझते हैं तो आप वो इबारत मुझे स्क्रीन लेकर मेरे व्हाट्सएप में भेजें, ठीक है? अभी तो आप कह रहे हैं कि हिफ्जुल ईमान मेरे पास रखी है, जब आपके तो पास मेरे पास है, मैं उसको पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता हूँ, तो उससे आपको ताल्लुक नहीं ना। आप कह रहे हैं ना कि आपने उसको देखा है, आपने उसको पढ़ा है, वो तो हमारे घर की किताब है ही। अच्छा, आप, हाँ, वो तो हमारा, लेकिन आप जो सुने हुए नहीं हैं, आप अगर उसको डायरेक्ट पढ़े हैं, देखे हैं, तो आप उसका स्क्रीन मुझे भेजिए तब या फिर अभी आप मुझे बताइए कि वो किताब कैसी है और जो है वो किताब किस लिए लिखी गई, बताइए आप, अगर आपको मालूम है। जी मुझे सब मालूम है, मगर पहले क्यों लिखी गई वो किताब बताइए तो? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत को घटाने के लिए लिखी गई। तो फिर आपका फोन लगाना ही बेकार है, मुझे अगर वक्त जाया करना है। पहले मेरी बात को सुनिए मुफ्ती साहब, देखिए जैसे आपने कहा कि मेरे बात से जोड़ू, आपने कहा। अच्छा, मैं बोला आपकी बात में? नहीं, मुफ्ती साहब, ये आपकी काबिलियत नहीं है, मैं इसको बिल्कुल भी आपकी काबिलियत नहीं मानूंगा। आपने थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी मुफ्ती साहब, मैं आपकी बिल्कुल भी काबिलियत नहीं मानूंगा, क्योंकि आप मेरी बात को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। आपने कहा मुकम्मल हो गई, हजरत, मुकम्मल हो गई, नहीं हुई है मुकम्मल तो तब होगी जब मैं हिफ्जुल ईमान की इबारत आपको पढ़ के सुना दूंगा। हाँ जी हाँ, सुनाइए, अभी सुनाइए, चलिए अभी सुनाइए। जी जी बिल्कुल सुनाऊंगा इंशाल्लाह, टेंशन मत लीजिए हजरत। हाँ चलिए शुरू कीजिए। आपने कहा था कि आपने जो ये कहा कि उस बच्चे का इल्म और मेरा इल्म दोनों से आप तशबीह दे रहे हैं, वाकई अगर उस बच्चे का इल्म मेरे जैसा है तो ये तौहीन नहीं है। मेरे भाई, अगर मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा है तो अभी साबित हो जाएगी ना। आप पढ़ के सुनाए वो इबारत अभी रिकॉर्ड भी करना शुरू कर दें आप, ठीक है? मेरा तो रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा तो चलता ही है रिकॉर्ड मुफ्ती साहब। नहीं, तो ये तो हमारी आपकी बात है, हमारी और आपकी बात को कौन सुनता? आप मौलाना अशरफ अली थानवी जो बकौल आपके उन्होंने तनकीस की है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपको इबारत पढ़ के सुना दें शुरू से बस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, है कि आपको मालूम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म पाक के ताल्लुक से किसी ने सवाल किया, ठीक है?
तो किसी ने सवाल किया, वो सवाल पढ़े आप, जी हाँ, उसके बाद फिर जवाब पढ़े और रिकॉर्ड भी करें। जी जी, रिकॉर्ड तो मेरा होता ही है, रिकॉर्ड तो मेरे पास चालू रहता है। हाँ नहीं, ठीक है। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन बिलखुसूस इसको करें। ठीक है जी, जिस तरह आप पर आलिमुल गैब का इतलाक पूछने वाला जो है पूछ रहा है कुछ, ठीक है, तो आलिमुल गैब तो हमारा अकीदा ही नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हम में से कोई सुन्नी भाई या हमारे आलिम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं कहता कि हुजूर आलिमुल गैब हैं। हुजूर के लिए इल्म गैब हम तस्लीम करते हैं, वो भी अल्लाह का अता किया हुआ, ठीक है। और आपके मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने भी इसको जो है आलिमुल गैब नहीं माना, बल्कि इल्म गैब ही माना, यानी बाज इल्म गैबों में से उन्होंने तस्लीम किया है। अच्छा, तो अच्छा बकौल आपके मौलाना अशरफ अली थानवी साहब बाज इल्म गैब मानते हैं, आप क्या मानते हैं? जी, बाज इल्म गैब हम मान रहे हैं जो अल्लाह ने बताया, अगर वही बाज इल्म गैब तमाम कायनात के सामने, ठीक है, तमाम कायनात के सामने उसकी कोई मिसाल नहीं है, यूं समझिए कि सारी कायनात का इल्म हुजूर के उस बाज इल्म के सामने एक कतरा है, और वो हुजूर का बाज इल्म 7 समंदर और उससे भी कहीं ज्यादा। और इस बात को मौलाना मुफ्ती उमैर कासमी साहब ने, आपके मुफ्ती असरार साहब ने, आपके मुफ्ती इंतखाब साहब ने, और आपके मुफ्ती कई सारे मुफ्तियों से मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का हम किसी से भी जो है तकाबुल नहीं कर सकते। कायनात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की तरह किसी का भी इल्म नहीं है। तमाम कायनात का इल्म एक जगह और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म अलग। हमारे नबी का जो वही कतरा जो इल्म है अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने, मगर कायनात के सामने वही 7 समंदर इल्म है, तो भाई ये उसका भी तकाबुल नहीं कर सकते। सुनिए हजरत, अब तो घटे घटाए हुए मसले पर जो है नहीं हजरत, सुनिए, जो सबने घेट घाट रखा है, नहीं नहीं हजरत, नहीं, मेरा एतराज क्या है वो सुनिए। जो आपका पूछने वाले ने पूछा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो इल्म गैब लोग तस्लीम करते हैं, इल्म गैब मानते हैं। नहीं, आप समझाइए, मैं आप इबारत पढ़िए, सिर्फ अब सवाल पढ़िए और जवाब पढ़िए। अच्छा चलिए, मेरा एतराज ही सुन लीजिए, आपको टाइम नहीं है तो ठीक है। नहीं, आप इबारत पढ़िए ना, मैं तो इबारत सुनना चाह रहा हूँ ना, आप इबारत। मैं इबारत ही तो पढ़ के बता रहा हूँ। हाँ, पढ़िए। हाँ, तो थानवी जी ने उसके ताल्लुक से कहा कि अरे थानवी जी तो सवाल नहीं कर रहे होंगे ना, साहिल का सवाल पढ़िए ना पहले आप। थानवी जी तो सवाल नहीं कर रहे होंगे ना, वो बताबील असनाद, बताबील असनाद औला बिस सबब इतलाक करना नाजायज होगा, समझ गए, क्योंकि आपके एजाद और सुनिए बकाया आलम के सबब है। मेरे भाई सुने तो सही, असनाद कहाँ लिखा हुआ है? असनाद तो होता ही नहीं है। अरे भाई ये क्या लिखा है? इसनाद लिखा है ना, आपने असनाद पढ़ा ना। चलिए खैर, मगर मेरा जहाँ पर एतराज है वो उसको सुनिए। थानवी जी क्या कह रहे हैं? थानवी जी ने नहीं पढ़ पा रहे हैं मेरे भाई। अरे इबारत नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपने थानवी जी की तो इबारत सुनेंगे ना कम से कम। थानवी जी कह रहे हैं, सुनिए, वहाँ असनाद लिखा हुआ है ही। अरे यार सुनिए ना, लिखा हुआ है, किताब खोलिए ना आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, असनाद होता ही नहीं। खोलिए ना आप किताब खोलिए आप, देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, देखिए ऐसे बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। चलिए, थानवी जी ने क्या एतराज किया है, थानवी जी की बात सुनिए। आपकी जात मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही है तो दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अमर बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमी हैवानात माज़ल्लाह बहाइम के लिए भी हासिल है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ज़ैद का कौल अगर ऐसा होगा तो ज़ैद की बात से यही लाजिम आएगा। ज़ैद ने बात ही ऐसी की है। ज़ैद ने वहाँ देखिए, आपको यकीनन आपको नजर आ रहा होगा कि बकौल ज़ैद जो कह रहा है, ज़ैद की बात से ये लाजिम आ रहा है, ज़ैद ये कहना चाह रहा है कि हुजूर का इल्म है तो जानवरों जैसा फला। मौलाना अशरफ अली थानवी तो अपनी बात कह ही नहीं रहे मेरे भाई, आप उर्दू इबारत तक समझने के अहल नहीं है और इमाम अहले सुन्नत पर आप एतराज कर रहे हैं। कंट्रोल करके बोलें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के जैसा किसी और का कायनात में इल्म है?
नहीं वो आप इबारत दोबारा पढ़ें, इबारत दोबारा पढ़ें जो आपने पढ़ी, जरा दोबारा आवाम को सुनाएं अभी। हाँ, आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना। हाँ, अब अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त, मतलब ये अमर है, अगर दरियाफ्त, अगर के बाद अगर बकौल ज़ैद, देखो वहाँ लिखा हुआ है, अगर बकौल ज़ैद जो कह रहा है, ज़ैद की बात से लाजिम आ रहा है, ज़ैद ये कहना चाह रहा है कि हुजूर का इल्म जानवरों के जैसा कहना चाह रहा है, ज़ैद कहना चाह रहा है, हुजूर मौलाना अशरफ अली थानवी तो उसको रद्द कर रहे हैं। नहीं, अरे गाली पे मत आइए, गाली पे मत आइए मुफ्ती गालिब साहब। आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, गाली आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ मौलाना अशरफ अली थानवी उस साहिल को कहना चाह रहा है। नहीं, साहिल को कुछ नहीं कह रहे हैं वो, सुनिए आपकी समझ में नहीं आया। थानवी जी देखिए, थानवी जी आलिम हैं, वो तो सिर्फ पूछ रहा है, मगर थानवी जी कह रहे हैं गालिब साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, या तो आप ही बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ ना, मौलाना अशरफ अली थानवी एक आलिम ही नहीं बल्कि इमाम अहले सुन्नत हैं। चलिए, तो अब आपकी समझ में नहीं आई तो दोबारा समझ लीजिए। नहीं, मुझे अच्छी तरह मालूम, मुझे आपको अच्छा, ये भी मालूम है, मुझे मेरे दोस्त, मुझे ये भी मालूम है कि आपको असनाद और इसनाद का फर्क मालूम नहीं है। सुनिए, अरे सुनिए, आपके थानवी जी कह रहे हैं कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब। अगर बाज इल्म गैब या मुराद है, यानी थानवी जी भी कुल इल्म गैब नहीं ले रहे हैं, बाज इल्म गैब ही ले रहे हैं। सुनिए, बाज इल्म गैब ही ले रहे हैं, ठीक है? तो अपनी बात वहाँ कर ही नहीं रहे अभी तो। अरे थानवी जी ही तो अपनी बात कर रहे हैं, साहिल का सवाल तो खत्म हो गया। अभी तो जैद के कौल पर बात हो रही है कि अगर जैद ये कहना चाह रहा है, अगर बकौल जैद ये कहना चाह रहा है, तो जैद के कौल पर तशरीह हो रही है वहाँ पर अभी। अरे जनाब, आपके बात समझ में क्यों नहीं आ रही है मुफ्ती साहब? आप इतने बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती गालिब साहब, आप मुफ्ती से आप मौलवी कहलाने लगे हो। मेरे भाई, आपके कुछ समझ में आना चाहिए ना ये बात। ये आप ठीक है, झूठ है, ये झूठ है आप लोगों का। देखिए, झूठ नहीं है भाई, जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? थानवी जी सुनिए हजरत, थानवी जी कह रहे हैं कि जैसा इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ऐसा इल्म तो जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी हासिल है। अभी मैंने आपसे पूछा था कि अगर मैं ये कहूँ कि जैसा इल्म मुफ्ती गालिब साहब का है, ऐसा इल्म तो एक छोटे से बच्चे का भी है, मैंने ये आपकी तौहीन की है या तारीफ की है? आपने कहा तौहीन की है। और अगर वाकई उसमें ऐसी सिफत है, वो कमाल है, तो तौहीन नहीं है, मगर उस बच्चे में तो वो कमाल ही नहीं है जो आपके अंदर कमाल है। बिल्कुल, ठीक है। तो कायनात में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म कमाल की तरह किसी और का इल्म और कमाल है? तो वही जवाब दीजिए मुफ्ती साहब। वही मौलाना अशरफ अली थानवी ने उस जैद को समझाया कि अबे जैद, अगर तुम अपने जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज इल्म गैब की वजह से तुम हुजूर को आलिमुल गैब कहना चाहते हो, तो तुम्हारे कौल से तो ये लाजिम आ रहा है कि हुजूर के इल्म को तो तुम बहाइम, बच्चों, मजनून तक मिला रहे हो। उनको जैद को समझा रहा है कि तुम ऐसा मत करो, हुजूर के इल्म को बहाइम के तरह मत मिलाओ। उनको तो मौलाना अशरफ अली थानवी रोक रहे हैं, लेकिन अफसोस कहाँ है यहाँ? बताओ जरा, कहाँ है? किधर लिखा है रोक रहे हैं? कहाँ है यहाँ? अल्लाह अकबर, वही तो कह रहा हूँ, आपको उर्दू की समझ नहीं आती। अरे भाई, उर्दू की समझ, मेरे सामने किताब रखी है ये, और आप कह रहे हो कि उर्दू की समझ वहाँ जो है, वहाँ क्या है? यहाँ बताइए। आपको चैलेंज है, सवाल क्या है इसमें? सवाल में लफ्ज असनाद है ना, आप असनाद की तशरीह करें। इसनाद, चलिए इसनाद क्या है? इसनाद बता दें आप, इसनाद क्या है, किस मस्दर से है, क्या है उसका मतलब? मेरा उस पर वहाँ पूरी किताब पे एतराज ही नहीं है। मेरा एतराज तो ये है कि थानवी जो कह रहे हैं, इसलिए है, देखिए एतराज इसलिए है मेरे दोस्त कि आप मुफ्ती साहब घबराइए बिल्कुल नहीं, मैं घबराइए बिल्कुल नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक की थानवी जी ने यहाँ पे तौहीन की है। क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा ही इल्म है जैसा जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को हासिल है? माज़अल्लाह, ये तो आप कह रहे हैं ना। अरे ये तो आप, अरे भाई तुम्हारी मुफ्ती साहब देखिए, घबरा के नहीं बोलिए, जब मेरी बात पूरी हो जाए, जब मैं कहूँ इसका जवाब दीजिए तब बोलिए। आप ये यकीन रखिए कि अगर मौलाना अहमद रजा खान साहब भी अपनी खबर से उठ के आ जाए तो रब्बे कायनात की कसम मेरा एक बाल बेका नहीं होगा, बल्कि उस शख्स पर मौलाना अहमद रजा खान, बाल बेका तो तुम्हारा कब्र में होगा, फरिश्ते करेंगे, ठीक है? मैं तो नहीं करूंगा, ठीक है? मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूंगा? फरिश्ते हिसाब ले लेंगे, और आपको अपनी कब्र में सोना है, हमको अपनी कब्र में सोना है, ठीक है? बिल्कुल, हस्बुनल्लाह व निअल वकील। तो मेरे भाई,
آپ کی میں نے یہ کہہ کر کے توہین کر دی کہ جیسا علم آپ کا ہے ایسا علم تو ایک قاعدہ پڑھنے والے چھوٹے سے بچے کا بھی ہے، اس میں آپ کی توہین ہو گئی. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کائنات میں کیا کسی اور کا علم ہے؟ اس سے تو بحث ہی نہیں ہے. ارے اسی پہ تو بحث ہے. وہ تھانوی جی تو یہی بتا رہے ہیں نا، تھانوی جی کہ آپ کی ذات مقدس سنیے، سائل پوچھ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب تسلیم کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، تو تھانوی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنیے، یہ سائل کا سوال نہیں ہے. ارے یہی سوال ہے، پوچھ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ جو علم غیب تسلیم کرتے ہیں، حضور کے لیے غیب کا علم مانتے ہیں، یہ ماننا جو ہے وہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ یہ کیسا ہے، کیا ہے؟ سنیے حضرت، ابھی آپ سوال پڑھے، آپ کا جھوٹ ابھی پکڑا جائے گا. سوال پڑھے. بالکل بالکل. آپ اس میں یہ ثابت کر دیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی توہین نہیں کی، غلامی کروں گا، تمام زندگی تمہاری غلامی کروں گا. بتائیے، میں لکھ کے دے دوں گا اسٹامپ پیپر پر، سرکار کے حکومت کا اسٹامپ پیپر لے لیجئے، میں اس پہ سائن کر کے دے دوں گا. اگر اس کو تم یہ ثابت کر دو کہ یہ تھانوی جی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابے گدھے ایسا نہیں ہے، اگر وہ یہ کہہ رہے ہوں، تھانوی جی تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جیسا علم حضور کا ہے ایسا علم تو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کا بھی ہے. تھانوی جی تو یہ کہہ رہے ہیں. تھانوی جو اس کو سمجھا چھوڑ رہے ہیں، وہ تو خود پوچھ رہا ہے سوال. سائل تو خود پوچھ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ علم غیب تسلیم کرتے ہیں وہ ماننا جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ سوال تو ہے ہی نہیں. ارے جھوٹ بول رہے ہیں. پھر وہی بات. ارے آپ سوال پڑھے نا، آپ کے سامنے کتاب ہے نا، تو وہ پڑھ کے سنائیں آپ. تو میں نے آپ کو بتایا نا، تو میں کہہ رہا ہوں نا وہ سوال ہے ہی نہیں، وہ غلط بول رہے ہیں آپ. میں نے کیا غلط بولا ذرا آپ بتائیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو علم غیب مانتے ہیں تو یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ رب کائنات کی قسم یہ وہاں لکھا ہوا ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے. یہ مفہوم کے اعتبار سے بھی غلط ہے، الفاظ کے اعتبار سے بھی غلط ہے. سائل کا سوال یہ ہے ہی نہیں. ساحل کا سوال تو یہی ہے نا، ساحل بتا رہا ہے، پوچھ رہا ہے آپ کے علماء سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ جو ہے علم غیب عالم کے سبب میں جو مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے، دنیا کی خبر جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے ہیں؟ ارے میں خوب سمجھ رہا ہوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے میرے بھائی، مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ پڑھنے کے قابل نہیں ہیں. سائل کہہ رہا ہے کہ جس طرح آپ پر عالم الغیب، تو عالم الغیب سائل نے کہا نہیں کہا، مگر تھانوی جی نے یہاں پہ اس کا لگایا ہے. تو اب سنیے تو سائل کے عالم الغیب کے تعلق سے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں ہے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی عطا سے علم غیب حاصل ہے، یہ کہنا چاہیے تھا. نہ کہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ جیسا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ بہائم کو بھی معاذ اللہ حاصل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سائل کہہ رہا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ماننا، علم غیب تسلیم کرنا، یہ جو ہے صحیح ہے نہیں صحیح ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عالم الغیب ہیں یا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ہے، کیا ہے؟ سائل کا یہ سوال تھا. سمجھ رہے ہیں؟ حق تعالی شانہ عالم الغیب نہیں، اس طرح سے سب بہت کچھ باتیں ہیں. پھر لکھا ہے کہ نعوذ باللہ. تو کیا اس کلام کو منہ سے جو ہے نکالنے کی کوئی جو ہے عقل مند انسان کے لیے بول رہے ہیں کہ اجازت دینا گوارا کر سکتا ہے معاذ اللہ؟ بالکل نہیں، اسی کو تو منع سنیے تو حضرت، کوئی عقل مند انسان اس بات کو جو ہے اجازت دینا گوارا کر سکتا ہے؟ ہم بھی نہیں مانتے اس بات کو تو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، ہمارا کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے. اس کے آگے پھر کہتے ہیں کہ اس بنا پر تو جو ہے بانوں فقیروں کی جو ہے کیا لکھا ہے مفتی صاحب، آپ چھوڑ دیں بےہودہ صدائیں بھی سنیے، بےہودہ صدائیں بھی خلاف شرع ہوں گی. تو شرع کیا ہوا؟ بچوں کا کھیل ہوا معاذ اللہ. کہہ رہے ہیں شرع کیا ہوا؟ بچوں کا کھیل ہوا.
जब चाहा बना लिया, जब चाहा मिटा दिया, ये कहना चाह रहे हैं। फिर आगे लिखते हैं, फिर ये सुनिए हजरत, सुनिए पूरा खेल मैंने बता दिया। एक मिनट रुको, हजरत चुपिए ना, वो कह रहे हैं कि वो तो किस तरीके से हजरत किस सुनिए, तरीके से मना कर रहे हैं, किस तरीके से मौलाना अशरफ थानी मना कर रहे हैं कि तुम जानवरों और फला और तस्का के इल्म नहीं, ये तो क्या शरीयत, ये तो तुम बच्चों का खेल बना रहे हो। इसको मौलाना अशरफ अली थानी इतनी शिद्दत से मना कर रहे हैं। क्या बोल, ये नहीं कह रहे हैं, आप समझते क्यों नहीं है भैया? अरे मैं अच्छी तरह समझता हूँ मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं समझते हैं। कहाँ कह रहे हैं ये कि मतलब ऐसा, वो तो आप खुद बता रहे हैं कि जो है फिर ये ऐसा रखना नहीं सकते। सुनिए सुनिए, शरह समझते हैं आप? शरह, अरे यार सुनिए ना, फिर कह रहे हैं कि आप शरह, अरे सुनिए ना यार, शरीयत को कहते हैं शरा, शरीयत को कहते हैं शरा। वो आप सुन लीजिए, अगर तुम इस तरह बोलोगे तो शरह नहीं होगा, ये बच्चों का खेल हो जाएगा। ऐसे बात नहीं होती है मुफ्ती साहब, आप भी बराबर बोल रहे हैं, मैं भी बराबर बोल रहा हूँ। अपनी बात कह रहे हैं कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो, यानी वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये इल्म गैब तस्लीम कर रहा है। तो थानवी यहाँ पे इनकार कर रहे हैं। सुनिए ना, थानवी जी यहाँ पे इनकार कर रहे हैं, तुम्हारी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? थानवी जी तो इल्म गैब का ही इनकार कर रहे हैं और फिर बाज इल्म गैब को तस्लीम करते हुए कह रहे हैं कि जैसा इल्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अमर बल्कि हर सभी मजनून को भी हासिल है, यानी जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी हासिल है। थानवी जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जनाब उसे, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? उसकी बात को तो रद्द कर रहे हैं। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब तस्लीम कर रहा है तो उसका रद्द कर रहे हैं यहाँ। मुफ्ती साहब आपको समझ नहीं आ रही इतनी मोटी बात? आप 10 बार कह चुके कि मौलाना अशरफ अली थानवी भी बाज इल्म गैब मानते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि जो इल्म गैब मानता है उसका रद्द कर रहे हैं। अरे तो आपकी कौन सी बात माने हम बताएं? देखिए, आपसे मैंने कहा कि मैं अगर सुनिए, अभी आपने कहा था ना कि अगर आप ये कहेंगे कि जैसा इल्म उस बच्चे का है ऐसा मेरा है तो ये मेरी तौहीन है, तो वाकई आपकी तौहीन है, क्योंकि आप मुफ्ती हैं, आलिम हैं। क्या सरकार के बराबर आपको इल्म है? हाँ, जैसा कि मौलाना अशरफ, अरे नहीं यार, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना आपको इल्म है? ये क्या, ये कैसा बेईमाना सवाल है आपका? हाँ, ये बेईमाना सवाल तो कर रहा हूँ। जब आपको इल्म नहीं है तो जानवरों, पागलों, बच्चों, तो रंदों को कैसे हासिल हो जाएगा? क्या मौलवी अशरफ अली थानवी साहब को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर इल्म है? ये तो जहालत वाली बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो थानवी जी ने यहाँ पे जिहालत खेली है, यहाँ पे जिहालत वाली बात कही है, इसलिए उन पे कुफर का फतवा लगा है। थानवी ने मना किया था कहने के लिए। थानवी ने, भाई ऐसा मत बोलो, थानवी ने मना किया, ऐसा मत बोलो, थानवी जी कहते हो यार, तुम्हारे बुजुर्ग हैं। थानवी साहब ने मना किया था कहने के लिए, लेकिन क्या करे, बरेलवियों को गुस्ताखी की आदत पड़ी है। भैया रोज रसूल पाक के इल्म की तौहीन कर रहे हैं और रोज लोगों को सुना रहे हैं कि हुजूर का इल्म जानवरों, पागलों जैसा, नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। रोज फोन कर करके लोगों को बता रहे हैं कि रसूल, बिल्कुल बताएंगे इंशाल्लाह, कयामत तक बताएंगे कि थानवी जी ने ये कुफ्र किया है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तौहीन की है। थानवी जी इस इबारत को लिख के काफिर हो गए। तौबा मत कीजिए। साहिल पूछ रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब तस्लीम करना कैसा है? तो थानवी जी कह रहे हैं कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना बकौल हो तो दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज़ इल्म गैब है या कुल इल्म गैब। अगर बाज़ इल्म गैब मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है, यानी हुजूर की क्या खुसूसियत है, यानी उनकी क्या बड़ाई है। इस जुमले को समझो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें क्या खुसूसियत है, क्या खासियत है, क्या बरतरी है। अरे मेरे भाई, इतनी मोटी आप बात नहीं समझ पा रहे हो, इनकार कर रहे हैं। अब थानवी जी काफिर हुए कि नहीं हुए बताइए? आपको मैं अगर उसकी इबारत का, अरे हजरत, थानवी जी काफिर हुए या नहीं हुए? आपने कहा कि मेरे इल्म की तौहीन कर दी आपने उस बच्चे के सामने, तो मेरे आका के इल्म पाक की तौहीन, जानवरों, पागलों के नाम लेके, जानवरों से तशबीह देके ये मेरे नबी के इल्म की तौहीन की है या नहीं की है? बस बता दीजिए। थानवी जी तो इमाम अहले सुन्नत हैं और फिर वही बात है, इमाम अहले सुन्नत है। मैं कहता हूँ तुम उनको कुतुब मानो, अब्दाल मानो, जो भी मानो, मगर ये मेरे आका की शान में तौहीन है या नहीं, बस इतना बता दो। अगर तुम वैसा मानते हो, अगर तुम जिसको मौलाना अशरफ अली थानवी ने मना किया फिर भी अगर तुम उसको मानते हो तो उसमें तुम जरूर काफिर हो जाओगे। तुम जो भी हाँ, अगर तुम मानोगे तो काफिर हो जाओगे। तौबा कर लो। थानवी जी काफिर हैं, काफिर हैं, काफिर हैं, काफिर है। मैं 1 लाख मर्तबा कहूंगा काफिर है, मैं साबित कर रहा हूँ। तो आपकी अगर हिम्मत है, आप इतने बड़े मुफ्ती हैं, तो कुफ्र से निकाल दीजिए। मुझे कोई हिम्मत नहीं है आपसे मुनाजरा करने का, ठीक है? आपकी क्या, आपके बड़े बड़ों की हिम्मत नहीं है? क्योंकि अरब अजम के
सैकड़ों उलमा का थानवी जी पे फतवा लगा हुआ है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे और आप इतनी मैं- बड़ी इबारत को, इतनी बड़ी गुस्ताखी को गुस्ताखी नहीं समझ रहे हैं। हालांकि थानवी जी ये कह रहे हैं कि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई खुसूसियत नहीं है जनाब। कह रहे हैं इसमें हुजूर की क्या तखसीस है, यानी इसमें कोई हुजूर की कोई तखसीस नहीं है, हुजूर की इसमें कोई खासियत नहीं है। अब मेरे बताइए, भाई, मैं तो कह रहा हूँ, अरे मैं ये तो जुमला आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूछने वाला पूछ रहा है कि हुजूर के लिए इल्म गैब तस्लीम करना, हुजूर के लिए इल्म गैब मानना, ये जायज है या ना जायज है, कैसा है? थानवी जी कह रहे हैं इसमें हुजूर की तखसीस है, ऐसा इल्म गैब तो जानवरों, पागलों, बच्चों को भी हासिल है। थानवी जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ये बता रहे हैं, तुम कह रहे हो कि वो उसको उल्टा समझा रहे हैं। यार तुम्हारी इतनी मोटी बात समझ में नहीं आ रही मुफ्ती साहब। आप इबारत पढ़ना और मैं जहाँ रुकने आप पढ़ के बता दीजिए अब मुझे, आप इबारत अब मुझे पढ़ना- आप पढ़ के बता दो अब मुझे क्या नहीं, कहते हैं नहीं, थानवी जी। मैं तो नहीं मैं तो मत करो, अब आप पढ़ के बता दीजिए, हो सकता है आप ज्यादा समझ रहे हो, नहीं मैं कम समझ रहा हूँ। ना तो मैं और आपसे मुनाजरा कर पाऊंगा। मुफ्ती साहब मैं मुनाजरा नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद देवबंदियों से निकला हुआ एक आप शख्स। जीत गए, आप जीत गए। भैया मैं ठीक है? जीत नहीं रहा हूँ आपसे, सिर्फ थानवी जी को ये साबित कर दीजिए थानवी जी ने हुजूर की तौहीन नहीं की। समझे, आप जीत गए। भैया और मैं आप- जीत नहीं रहा हूँ आपसे, यहाँ जीतने की कोई बात नहीं भाई। आप जो है ना बड़े प्यार से, बड़े अदब एहतराम के दायरे में रह के मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। मैं यहाँ जीतने नहीं आया हूँ। बस ये बताइए कि मैंने आपके लिए ये कह के कि जैसा इल्म मुफ्ती गालिब साहब का है, ऐसा इल्म तो एक छोटे से बच्चे का भी है, तो मैंने आपके इल्म की तौहीन की, वाकई मैंने तौहीन की, क्योंकि मेरे दिल में आपकी मोहब्बत नहीं, इसलिए मैंने ऐसा कहा। और अगर मेरे दिल में मोहब्बत होगी तो मैं कहूंगा नहीं, मौलाना गालिब साहब का बहुत अच्छा इल्म है, बहुत उम्दा इल्म है, बहुत जो है जबरदस्त आलिम है, मैं ये कहूंगा। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप थानवी जी को बहुत बड़ा आलिम मानते हैं और इमाम अहले सुन्नत मान रहे हैं, हालांकि वो इमाम अहले सुन्नत है ही नहीं। चलिए, जी हाँ, मगर ये देखिए अदावत और नफरत, ये जो चीज है ना, ये अलग ही झलकती है, क्योंकि इसके जो जुमले होते हैं ना वो कुछ अलग होते हैं, कड़वे होते हैं, खट्टे होते हैं। मैं एक मिनट अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं अदावत क्या होती है। हिस्सा 100 में मौलाना अहमद रजा खान साहब ने लिखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक में अपनी बीवियों से सबपाशी करते हैं। अच्छा। ये है अदावत, ये है रसूल की गुस्ताखी। इस पर पूरी गुफ्तगू करेंगे आप, गुफ्तगू करेंगे आप, ये साबित करेंगे कि आला हजरत ने जो शब्बाशी कहा है वो किसके जो है इबारत पेश की है। मगर आपको अपने उलमा की भी सारी चीजें सुनना होंगी इंशाल्लाह। मैं आपके उलमाए देवबंद की शब्बाशियां दिखलाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, तो इसमें शब्बाशी पे आप मुझसे बात करेंगे? अरे मेरे भाई, नहीं, अरे मेरे भाई मत करिए। अब आपने शब्बाशी का मामला छेड़ दिया है, थानवी जी को फिर काफिर साबित कर दिया मैंने, तो वो आपको और आप तौहीद थानवी नजर जी नहीं को आया। मुसलमान साबित नहीं कर सके, और ना थानवी हमको साहब जरूरत भी नहीं आप है। खा सके हो। मगर हमको अब आइए जरूरत भी नहीं। शब्बाशी पे बात करते हैं। हमको जरूरत भी नहीं है। नहीं, हमको शब्बाशी पे ही आप बात करेंगे, भागिएगा हाँ, नहीं। उस पे तो करेंगे ही। जी जी जी। हमको तो मौलाना आसिफ अली- आप पेश कीजिए शब्बाशी का माना क्या है। आप मुफ्ती हैं, शब के हाँ। माना क्या है, बाश का माना क्या है, चलिए बताइए। अच्छा, तो मेरे बाप की जोड़ू का क्या माना है? हाँ बिल्कुल, तो आप बताइए। इसको पेश कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपके घर की शब्बाशियां दिखाता हूँ मस्जिद में, अरे अभी और तो सब आपने जगह कहा ना- इंशाल्लाह सब बादशाह दिखाऊंगा आपके घर की। डरिए मत, घबराइए मत, मैंने इसलिए कह दिया ताकि मजा आएगा इसमें आप बात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए। आ गए ना माना पे? कि नहीं, माना क्या है? अभी तो नहीं, थोड़ी देर पहले आप देखिए। कहते ना कि मेरा बाप का जोड़ू है तो माना ठीक है कि नहीं, आपने ही कहा था ना। अरे भैया हाँ, तो मैं बोल तो रहा हूँ, इसी पे बात कर शब्बाशी का आप कितना भी अच्छा माना निकाल लीजिए, शब्बाशी का वही मतलब होगा जो जहन में आता है, चाहे आप नहीं, कितना क्या अच्छा आता माना है, निकालिए। क्या आता है, क्या आता है आपकी नजर में? अपनी नहीं अज़वाज आप ही बता मुताहरात- दीजिए क्या आ रहा है आपके जहन में। अच्छा, तो बताइए कि आप अपने अम्मी के मुतालिक ये कहेंगे कि ये कमरा है जिसमें मेरे वालिद साहब मेरी माँ के साथ सप्पाही करते हैं, लिखेंगे किताब में, लिखिए, व्हाट्सएप में आप सुनिए। वीडियो बनाकर बोलिए आप। आपकी बाजी जिसकी आपने शादी कर दी थी वो आपके घर आई और आपके यहाँ शब्बाशी की, ठीक है, आपकी बाजी ने आपके यहाँ शब्बाशी की, अरे ये नहीं और फिर लिखा हुआ सुबह है में कि अपने मेरी घर बाजी गुजर- ने नहीं। सुनिए आप अगर देखिए मुफ्ती साहब, हिम्मत जो है आदमी आपको- जिस तरह मुझसे बात करता है मैं उसी आप- तरह से बात करता हूँ। अगर आपको ठीक है? हिम्मत है, अगर आपको अरे भैया हिम्मत है, हिम्मत है, तो ये अपने घर की बोलिए, किताब, अपने घर की किताब का आप हवाला सुनिए, ठीक है, आपको हिम्मत है टेंशन तो मत आप ये लीजिए, मैं कहें। सारे आपके घर के किताबों के हवाले बताऊंगा, ठीक है। देखिए आपकी बात, देखिए मुफ्ती साहब हंसने आपकी वाले से, बात आती है तो किससे भागते हैं देखिए आप? जमालुल औलिया, ये हाँ। आपके घर की एक किताब है, जिसमें शब्बाशी के माने के ताल्लुक से जो है आपके जो उलमा है कहाँ कहाँ और कैसे कैसे शब्बाशियां कर रहे हैं, हाँ। ठीक है,
तुम्हारे यहाँ इन्हीं पर बात होगी इंशाल्लाह, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। नहीं, आपको मैं कह रहा हूँ, अरे भैया आप तो पहले वो इबारत पेश कीजिए, आला हजरत ने क्या लिखा है बिल्कुल, बिल्कुल, और उसका हाँ। मतलब भी बता दीजिए कि आप क्या मतलब समझ रहे हैं। हाँ, फिर मैं तो इंशाल्लाह आपके घर की शब्बाशियां दिखाता हूँ, कैसी कैसी शब्बाशियां आपके बुजुर्गों ने की है, ठीक है। हमारे मस्जिद में भी बुजुर्ग- शब्बाशी कर रहे हैं और गांव के लोग भी शब्बाशी कर रहे हैं। क्या तुम्हारे मस्जिद में आके उनको- जिना कर रहे हैं हम? तुम्हारे उनको जिना का जिना अरे की सजा दो भाई उनको। आपने कहा ना, देखिए देवबंदियों की जहन ही गंदी है, सोच ही गंदी है मुफ्ती गालिब साहब। तो जब आपकी सोच ही गंदी है तो आप सोचेंगे क्यों नहीं। और फिर जब मस्जिद में आपके लोग शब्बाशी कर रहे हैं तो क्या वो एक दूसरे से उलट पुलट करते थे? मस्जिद में वो भी अल्लाह के घर में शब्बाशी हो रही है देवबंदी जमात वालों की। तो हाँ। क्या करूं, क्या करें क्या बताइए। करो, कुछ मत। जो अभी एतराज आला हजरत ने किया उसी एतराज को खुलासा करो बस। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह ये नाचीज बड़े अच्छे अच्छे मुफ्ती को धूल चटाता है, आपको भी चटाएगा इंशाल्लाह। हाँ, शब्बाशी पे ही बात करते हैं मुफ्ती साहब। आपने तो मुझे धूल चटा दिया, अरे भाई आप जीत गए। नहीं, देखिए मैं जीतने ना जीतने को कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, शब्बाशी जीत- के टॉपिक पर ही बात होगी अब इंशाल्लाह। हाँ, आप बताइए आला हजरत ने क्या लिखा है, उसका क्या मतलब समझ रहे हैं आप? हाँ? आला हजरत ने क्या लिखा है और आप क्या समझ रहे हैं, जरा अपना लेकिन- खुलासा कर दीजिए। फिर मैं आपके घर की शब्बाशियां दिखाता हूँ, कितनी शब्बाशियां हुई हैं और कैसे कैसे हुई हैं और कब कब हुई हैं। अरे ठीक है? मेरे और एक दो मेरे- किताबें नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कई सारी किताबें हैं। मेरे बताइए घर आला की हजरत ने शब्बाशी- क्या लिखा है, वो शब्बाशी से आप क्या समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर। आप नहीं, तो अगर- अल्लाह अकबर बाद में कहिएगा, आपके मुंह से अभी इस टाइम अल्लाह अकबर अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आपने गलत बयानी की है। आप मुफ्ती साहब नहीं बल्कि रसूल पाक से आपको कितनी मोहब्बत है यही जाहिर हो गई, समझे। अरे भाई मैं वो भी तो दिखाऊंगा ना कि आपको कितनी मोहब्बत है। और आला हजरत तो नाकिल हैं, आला हजरत तो नाकिल हैं, हाँ, नकल किया है। अच्छा। हाँ। सैयदी क्या नकल, जो नकल पढ़ के सुनाइएंगे आप। अरे बिल्कुल सुनाऊंगा, मगर पहले आला आप हजरत अपना फरमाते एतराज हैं कि रख दीजिए। हमारे- और आला हजरत फरमाते हैं देख कि रहे हैं हमारे- जनाब, ये मुफ्ती गालिब साहब हैं जिन्होंने आला हजरत के ऊपर एतराज किया। अब एतराज को खुलासा करके नहीं बता रहे हैं ताकि मैं इनके घर की शब्बाशियां गिना सकूं। नहीं, आप गिना देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं भैया, तो आप अब मुझे कोई फर्क एतराज नहीं पड़ता। लगाइए कि मुझे- आपने शब्बाशी से जो है क्या मुझे- समझा। फिर मैं मुझे- आपके घर की शब्बाशियां दिखाता हूँ, किस किसने कैसे कैसे शब्बाशी की और कहाँ कहाँ की। माज़अल्लाह मस्जिद में भी शब्बाशी की। अब अगर आप उससे तो गलत तर्जुमा उससे निकाल रहे हैं, हमारा- गलत उससे उसका हमारा माना दीन और निकाल ईमान रहे छीन हैं, जाएगा। समझे। उससे हमारा- देखिए शब का माना क्या है, शब किसे कहते हैं? अच्छा, आप माने पे आ गए तो आप अरे बताइए, यार, बताइए बाप ना, की शब्द जोड़ू किसे का क्या कहते माना है? बाप की जोड़ू का क्या माना है? बाप की जोरू का यही माना है कि वो उसके घर उसके बाप की जो है वो बीवी है, जोरू है, अच्छा, शरीक हयात है। अच्छा, तो अभी तो आप तो ये तौहीन वाला लफ्ज नहीं हुआ। बिल्कुल वो बेअदबी का- तौहीन वाला लफ्ज है, मगर यहाँ कौन सी तौहीन है, मुझे तौहीन तो अच्छा, समझाइए। अब तौहीन की शब्द के माना रात है, बाश के माना गुजारना है। अच्छा, अब हाँ, तो अब ये शब्द बाशी, अगर इसके माना यही लेओगे, हम बिस्तरी अगर आप लेओगे तो आपकी बहन आपके घर आई जो शादीशुदा थी और आपके घर जो है शब्बाशी की, तो आपने हम बिस्तरी की या आपके घर में किसी और ने हम बिस्तरी की? अल्लाह अकबर। तो अल्लाह अकबर मत कहिए जनाब। आपने अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो इल्जाम लगाया है, मगर मैं तुम्हारे घर से ये साबित करूंगा कि देवबंदी बुजुर्ग ने ये कहा कि शब्बाशी यानी हम बिस्तरी भी करते हैं। मैं तुम्हारे घर से साबित करूंगा, आला हजरत ने तो नहीं कहा हम बिस्तरी का, मगर तुम्हारे घर से देवबंदी ने हम बिस्तरी का कहा है। मुफ्ती गालिब साहब टेंशन मत लीजिए, मैं सब दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अरे मेरे भाई, मुझे रसूल से मोहब्बत है। अरे तुम्हें रसूल से मोहब्बत है तो तुम्हारे घर के देवबंदी से भी तो तुम्हें मोहब्बत होगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ जूता मारो उसको, अगर उन्होंने लिखा है उसको भी। आप जूता उसकी मत किताब- मरवाओ देवबंदी मौलवी को, हाँ, देवबंदी मौलवी को जूता मत तुम भी- मरवाओ। अब लेकिन तुम्हें भी तो देख कहना रहे हैं चाहिए कि जनाब, भाई- ये कह रहे हैं देवबंदी मौलवी को जूता मारो। हाँ, अब बताइए, रसूलुल्लाह, बेशक। ये जब घिर जाते हैं तो जूता मरवाने लगते हैं। हाँ। मगर मैंने इनसे कहा कि उसका माना मतलब बयान कीजिए। अब ये घबराने लगे हैं, डरने लगे हैं। अब मैंने कहा कि मैं तो ये भी साबित करूंगा तुम्हारे घर से कि उसने हम बिस्तरे का भी अल्फाज इस्तेमाल किया है। तो अब ये कह रहे हैं जूता मारो। अब बताइए, अब इन मुफ्ती साहब का क्या इलाज है? हाँ भाई मुफ्ती साहब, क्या इलाज है आपका, आप ही बताइए। अगर मैं तुझे रसूल पाक से मोहब्बत होती तो आप अब तू तलाक पे आ गया, हाँ? तू तलाक पे आ गया, अदब क्या का बोल- दामन छोड़ दिया। क्या तुमने तुम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया? तुम हमारे यहाँ बड़े को कहते हैं। तो फिर मैं कौन सा? अरे यार, तुम तूने तो अपना बोला। जब तुम्हारी बारी आती है तो तुम माना तूने निकालने तो लग जाते बोला, हो। हाँ? तू बोला, तुमने तू बोला। अगर चलिए तू करके बात करते हैं।
ٹھیک ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی محبت ہوتی تو آپ یہ کہتے کہ احمد رضا کے منہ میں جوتا مارنا چاہیے, اس کا قلم چھین لینا چاہیے, ہاتھ توڑ دینا چاہیے تھا جب وہ یہ جملہ ولا لکھ رہا تھا. قوت الا باللہ العلی العظیم. سمجھے, ہمت ہے. جسے خان بھی رسول سے کافر ہے, محبت- اور اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو اعلیٰ حضرت کی شان میں کچھ غلط فہمی اپنے ثابت کرو, اپنے آپ ثابت کرو. یہاں اگر ہمت چل. ضرورت ہے, بس اگر ہو علم گیا. ہے کچھ تو 1 گھنٹہ ہو چکا تم سے مجھے بات کرتے کرتے, کسی آپ- ایک بھی اعتراض کو صحیح سے خلاصہ نہیں کر سکے ہو تم. میں نے آپ کی- تمہارے گھر کے 2 حوالے, تم نے ہی دوسرے حوالے کو کھولا, میں نے نہیں کھولا. میں نے تو ایک ہی حوالہ کھولا اور میں نے کافر ثابت کیا, اور وہ تمہارے ہی حوالے سے کیا, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر توہین کفر ہے, بے ادبی کفر ہے یا نہیں ہے؟ اور تھانوی نے آپ کی- کفر کیا ہے. آپ کی اردو دانی سن کے اردو ٹھیک ہے, عبارت میری دیکھ اردو کے- دانی کمزور ہے, جو بھی ہے ٹھیک ہے, میری میں اردو تو- دانی کیسی بھی ہے, مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان و عظمت گھٹائے گا وہ مسلمان مانتے ہو اس کو یا کافر مانتے ہو؟ بتاؤ. میں آپ کے سامنے ہتھیار ڈال میں کے بھائی مت کرو یار, یہاں بکری اتنے بڑے مناظر میں سے- مت کرو. اتنے ٹھیک ہے؟ بڑے مناظر سے میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں آپ سے بات کر سکوں. میری دیکھیے یہاں مناظر کی کوئی بات ہی نہیں ہے میرے سمجھے, بھائی. میری اتنی اوقات نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ میری اتنی چلیے اوقات اچھا, نہیں ہے. اب آپ نہیں سنیں گے تو میں اپنے آپ کے گھر کی جو ہے وہ شب باشیے گنائے دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ ارے میرے بھائی گنائیں گے یا- جب میں کیا کہہ رہا ہوں, میں ہاں. گنانے کی اچھا, ضرورت آپ کب نے ہوتی جوتا ہے؟ مار دیا, میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ نے جوتا مار دیا, میں کہہ رہا ہوں گنانے کی ضرورت جب جوتا آتی مار ہے دیا جب آپ نے دیوبندیوں کو. دیکھیے پھر اگر آپ ارے چاہتے یار ہیں کہ بتا مجھے دیجیے نا, غصہ, آپ نے ہی تو کہا ہے کہ میں جوتا مار رہا ہوں جو شباشی کا الفاظ استعمال کر رہا ہے. تو ہاں میں بھی احمد رضا کے ساتھ ساتھ مارتا ہوں, اس کے بھی میں جوتا مارتا ہوں, اس میں بھی مارتا ہوں جو ایسا کرنے والے اعلیٰ ہیں, حضرت جو امام کہتے ہیں. احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسول ہاں. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کے لیے کہتے غلام ہیں کہ ہیں, اپنے رسول پاک غلام صلی ہے, اللہ علیہ غلام 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 اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزوں میں سے ایک معجزہ ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نعوذ باللہ. کسی دیوبندی گستاخ عورت ہمارے نے نزدیک. کسی دیوبندی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے جو اعلیٰ حضرت کو کافر یا مشرک ثابت کر دے, اور اگر کوئی ہے دنیا دیوبندیت میں پوری دنیا میں تو آئے نکل کے اور اعلیٰ حضرت کو کافر ثابت کرے. جب تھانوی نے کافر ثابت نہیں کیا, میٹھوی نے ثابت نہیں کیا, گنگوہی نے ثابت نہیں کیا, قاسم نانوتوی نے جو ہے اعلیٰ حضرت کے اوپر طنز نہیں کیا, ان کو مشرک یا کافر نہیں کہا, تو تم کیسے کافر کہہ رہے ہو؟ بتاؤ, لگاؤ فتوا, یا تو اپنے مولوی پر فتوا لگاؤ کہ تم نے کافر انسان کو مشرک انسان کو جو ہے چھوڑ کیسے دیا, اس پہ کفر یا مشرک کا فتوا کیوں نہیں لگایا, یا پھر تم سنو ارے سنو, یا پھر تم خود جو ہے اعلیٰ حضرت کو مشرک یا کافر کہہ کے خود کافر ہو گئے, یا تمہارے دیوبند کے 4 اکابر کافر ہو گئے. ارے میرے بھائی میں تو کہتا ہوں ہمارے علماء سے یہ غلطی ہو گئی, ہمارے علماء میری آواز ریکارڈ غلطی کرو. ہو گئی تو اس غلطی کا بھگتان تو وہ بھریں گے نا, وہ تو خود کافر ہو گئے جب کسی تو کافر کو بھریں گے. کافر نہیں کہا. نہیں کافر کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ بھریں گے. سنیے, وہ بھریں گے نا, ان کو شریعت کا کہنا مسئلہ چاہیے. پڑھیے, شریعت کا مسئلہ پڑھیے. اگر میرے کوئی بھائی. مرتد ہو گیا, کافر ہو گیا, مشرک ہو گیا, تو اس کے اوپر فتوا لگنا ضروری ہے, اس کی پہچان کرانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح تم ہم لوگوں کو مشرک کہتے ہو, معاذ اللہ, حالانکہ ہم مشرک نہیں ہیں, ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. دنیا دیوبندیت میں کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو ہم سنی مسلمانوں کو مشرک یا کافر ثابت کرے. دنیا دیوبندیت کی بات کر رہا ہوں مفتی غالب صاحب, سمجھ رہے ہیں؟ اب تجھے اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی جب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں مفتی نہیں ہوں. تو تم نے تو مفتی ہی اپنے آپ کو کہلوایا نا, کیوں کہا کہاں؟ مفتی؟ شروع میں نہیں سوچا, کہاں پڑھے تھے تم؟ مفتی افتہ کہاں کیا تھا؟ بچوں کو تم کہاں پڑھا رہے تھے؟ افتہ میں کہاں بیٹھتے تھے؟ بتایا تھا نا تم نے اس میں کہ میں فلاں مدرسے میں پڑھاتا ہوں, میں افتہ کے بچے کو پڑھاتا ہوں, حدیث پڑھاتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں. تو حدیث کون پڑھاتا ہے؟ مفتی پڑھاتا ہے نا حدیث, یا مولوی پڑھا دے گا حدیث؟ تم کہہ رہے ہو تم مدرسے سے پڑھے ہوئے ہو, پھر کیسی حماقت والی بات کر رہے ہیں؟ بھائی میں معافی مانگتا ہوں آپ سے. بھائی معافی مت مانگیے, یہاں پہ دیکھیے, چلیے آپ یہ سنیے, معافی مت مانگیے, بس یہ کہہ دیجیے میں نے اس مسئلے کو غلط چھیڑ دیا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم جو ہے دیوبندیت کی رگ رگ کو جانتے ہو, مجھے نہیں معلوم تھا. ہاں اب چوپیے, میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے میں عالم نہیں ہوں, میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, غلام ہوں, میں وفادار رسول ہوں. رسول کا رسول کا امتی عالم نہیں ہوتا.
वही तो कह रहा हूँ, आप इतने बड़े आलिम से मुझे पाला पड़ गया कि भाई आज मैं हैरान हूँ कि आलिम मैं नहीं किधर- हूँ, मुझे आलिम मत कहिए, ठीक है। मगर मैं उलमाए तो मेरे देवबंद के दोस्त- ऐसे परख्चे उड़ाता हूँ कि हाँ, सिर्फ एक मुझे- बार जो है मुझसे उलमाए देवबंद का बड़े से बड़ा मुफ्ती सिर्फ एक बार बात करता है, उसके बाद एकदम नहीं करता सपने होगा, में डर भी जाता होगा। बात करने की कोशिश नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल डर जाता होगा, मुझे भी यकीन हो गया भाई है कि हमारा डर क्या? जो भी आपको तुम थानवी जी को अभी तक मुसलमान साबित नहीं कर सके, मैंने जो काफी भी साबित आपको किया। फोन करता होगा तो थानवी वो जी डर ने जाता होगा। हजरत सुनिए, देखिए पहली नहीं, बात तो हजरत, ये है मेरे कि मेरी बात हुजूर आप सुन किबला- नहीं रहे थे। हुजूर दोनों किबला- बराबर बोल रहे हैं, दोनों बराबर बोलने वालों से मैं भी बात नहीं करता। मैं तो समझ आता काबिल इंसान है, अच्छे तरीके से आप बात करेंगे। जिस तरह से आप जो है सोशल मीडिया पे बात कर रहे थे मौलाना मुश्ताक साहब किबला के सामने, हाफिज एहसान साहब किबला के सामने, मैं समझा कि ऐसे ही बात करेंगे। मगर आप तो यार ऐसे मतलब लेकिन बच्चों आपके वाली सामने बातें कर दी हम, आपने। मगर आपके सामने हम डर गए ना, हमको डर नहीं गए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप डर गए भाई। आप हैबत हो मेरी गई, हमको हैबत हो गई दोस्त के हम बिल्कुल आपके हैबत हो सामने- जाएगी, ये बात तो हकीकत है कि आपको आप हैबत हो गई और थानवी जी को हाँ। तुम मुसलमान साबित न कर सके। हाँ, थानवी जी को यकीनन आपने मैं- काफिर साबित कर दिया, और इसलिए कर दिया कि मैंने आपके लिए ये कह करके कि जैसा इल्म मुफ्ती गालिब साहब का है ऐसा इल्म तो एक बच्चे का भी है, तो मैंने ये आपके इल्म की तौहीन की। तो जो इंसान, जो दुश्मन रसूल, गद्दार रसूल मेरे नबी के इल्म पाक को माज़अल्लाह जानवरों, पागलों, बच्चों से तशबीह दे, क्या वो काफिर नहीं होगा? मेरे नबी की शान में बेअदबी और ये बद कलामी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत को घटाना, हुजूर के इल्म की ऐसी माज़अल्लाह तशबीह बयान करना कि जो माज़अल्लाह जानवर और जानवरों में, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, जानवरों मैं तो डर में गया हूँ, मैं माज़अल्लाह- समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको क्या बोलूँ, मैं बहुत डर गया हूँ मेरे भाई। भाई डरने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। डर देखिए जाता है, इतना थानवी बड़ा जी अगर मुनासिब से मुसलमान जब बात होते तो आप होती है। डर दिल ठोक के यहाँ बात करते और कहते कि नहीं थानवी जी नहीं, मुसलमान है। और आप इतनी बड़ी मोटी इबारत को नहीं समझ पा रहे थे। वो कह रहे हैं कि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है, यानी हुजूर की क्या खुसूसियत है। जैसा इल्म हुजूर का है ऐसा इल्म तो जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों का भी है। तो ये कुफ्र है या नहीं है? हुजूर की शान में तौहीन है या नहीं है? ये गुस्ताखी है या नहीं है? अरे आप भाई जवाब दीजिए। मैं तो जवाब मैं दे चुका, मैं बार बार नहीं बोलता हूँ। हुजूर आप इतने बड़े आलिम दीन है, मैं कह रहा हूँ कि क्या मैं आलिम दीन नहीं हूँ? मैं वफादार रसूल हूँ, मैं हुजूर हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और मैं तो आप उम्मती बार बार होने का हुजूर हक के निभा रहा आप हूँ। बार बार जिस बात को मौलाना अशरफ अली थानवी इमाम अहले सुन्नत ने मना किया उसी को आप बार बार पढ़ रहे हैं, तो आप गुस्ताख मना नहीं नहीं किया है, मेरे नबी के इल्म की तौहीन की है और कहा है नहीं, कि नहीं, 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 जैसा वो इल्म तो- हुजूर को है ऐसा इल्म तो जानवरों को भी है, इसमें हुजूर की क्या तखसीस है? वो तो ये कह रहे हैं। यार मुफ्ती साहब आपकी इतनी मोटी बात समझ में नहीं आ रही। मेरे भाई हमको तो उनकी इबारत समझ में आ रही, लेकिन मुझे आपका इल्म बस क्या कहे, अब मैं हैरान हूँ कि देखिए कैसे कैसे बाकी इतने बड़े हैरान आलिम हो से- जाएंगे क्योंकि मैं उलमाए देवबंद से ही निकला हूँ, 15 साल से ज्यादा देवबंदी जमात में रहा हूँ और मैं इसीलिए, देवबंदियों हाँ। के रग रग से वाकिफ हूँ। मैंने इसीलिए आपसे कहलवाया कि वाकई जैसा में इल्म इसलिए हम आपका और भी है, ज्यादा अगर मैं डर ये गए हैं। हजरत मुफ्ती साहब, मैंने जो इसलिए आपसे हजरत, कहलवाया था इसलिए- कि मैं इसलिए अगर ये सुनिए ना, मुफ्ती साहब एक मिनट, आप मैंने जो 15 कहलवाया साल था ना रह के आपसे, आए हैं, आप हैं? 15 साल रह के आए हैं, इसलिए मैं और ज्यादा डर गया हूँ। बिल्कुल कि आप डर इतने जाएंगे। बड़े आलिम दीन बन और गए जो थे, भी इसलिए आप जो भी निकल गए। देवबंदियों से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह परक्षे उड़ा देता है उलमाए देवबंद बिल्कुल के। बिल्कुल 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 ठीक जी। है। आप मैं समझ यकीनन था यार, आप- मैंने कहा बहुत अच्छे आलिम हैं, बहुत काबिल आलिम हैं। आपका नंबर हाँ। मुझे पहली डिबेट में से मिल गया, कोई और डिबेट किसी और से हुई थी, ठीक है, तो पहले ही मैंने स्क्रीन शॉट खींच के ले लिया था आपका। बहुत टाइम हो गया किसी से बात हुई थी आपकी, किसी भी मौजू पे हुई हो, हम्म। ठीक है। बहरहाल मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। बिल्कुल और हाथ मैं- जोड़ने के इंशाल्लाह। हाँ हाँ, और आप जैसे जितने भी लोग होंगे, मैं भाई उनके इल्म का अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे तो- इल्म की कोई बात नहीं है। आप तो अभी भी आप थानवी जी को अभी भी मुस्लिम साबित कीजिए, नहीं, नहीं, गुस्ताखी से हमको साबित बचाइए। करने की जरूरत क्या नहीं है, हमको- थानवी जी ने हम- गुस्ताखी नहीं की है? और मैं हम साबित आपके- करूंगा कि थानवी जी ने गुस्ताखी की है। मेरे भाई सुनिए ना, आपके देखिए सामने दो जगह आप मार मैं खाते जब हैं। आप साबित आप कह रहे देखिए आप मैं तो इस कर तरह ही नहीं जवाब नहीं पाऊंगा। दे पाए, आपने शब्बाशी का मामला उठाया, उस पर भी बात नहीं कर पाए। नहीं नहीं, आपसे नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या बिल्कुल करूँ? नहीं कर पाओगे इंशाल्लाह, ये मेरा हाँ, दावा है। नहीं कर। अरे भाई मैं खुद कह रहा हूँ मैं नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करूँ आप बताइए। देखिए आपने आपके इल्जाम सामने लगाया हम आला नहीं हजरत पर पाएंगे। झूठा इल्जाम, और आपने ऐसा गुमान किया जो माज़अल्लाह कहना भी नहीं चाहिए, मगर वो मैं आपके घर से साबित करूंगा कि उलमाए देवबंद ने ये भी कहा है माज़अल्लाह के। खैर मैं साबित ही कर दूंगा कि आपके घर के उलमा बोले हैं कि हम बिस्तरी भी करते हैं अंबिया इकराम औलिया इकराम। हाँ जी हाँ, आपके घर के हवाले दूंगा इंशाल्लाह। नूर हसन कच्ची गोली नहीं खेलता,
हाँ, आप समझ रहे थे कि अरे भाई, शायद मैं इससे इस तो ये तरह की- बहुत बोल रहा है, मैं तो और जब मैं आपको यही जुमले में कह बाकी का दिया कि नाम लूंगा, इस पे आऊंगा, तो ये नहीं बोल पाएगा। अल्लाह के फजल व करम से देवबंदियों की रग रग से वाकिफ हूँ, और देवबंदियों को पलटने अल्लाह नहीं देता हूँ। अकबर। मैं ऐसी बात करता हूँ ताकि वो अगर पलटना भी चाहे तो पलट ना पाए। अरे मेरे भाई, आपसे कोई नहीं पा सकता। चलिए, कोई बात आप नहीं, किसी फिर को चलिए, कभी पलटने और फिर नहीं बात देंगे। करते। मैं रात अब में मैं बात भी आपकी नहीं- किस काबिलियत का इकरार करूं आपकी? और मैं नहीं तो नहीं कह नहीं, रहा मैं हूं, काबिल नहीं हूँ भाई, मैं काबिल नहीं हूँ, मुझे काबिल बड़े भी मत बड़े कहिए, मैं देवबंद नाकारा आपसे हूँ, नहीं बहुत पाएंगे। नाकारा हूँ। ठीक है, चलिए, मैं काबिल नहीं हूँ, मगर बड़े बड़े सुने तो सही, फिर बोलने भी तो दे। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे हार गया, हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपसे नहीं पाऊंगा। बड़े बड़े उलमा देवबंद आपसे नहीं पाएंगे। नहीं आपसे पाएंगे, ये मेरा दावा है। नहीं, मेरा दावा दुनिया नहीं, मैं कह रहा हूँ ना। देवबंदियत का कोई भी मुफ्ती आ जाए, अल्लाह के फजल व करम से आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मुशरिक या काफिर साबित नहीं कर सकता। अरे भाई, नहीं पाएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके सामने नहीं पाएगा मेरे भाई। अब और क्या करूँ, ज्यादा से जी ज्यादा मैं जी, भी नहीं पाऊंगा। चलिए, हमारे अच्छा, असातिज़ा तो भी फिर कभी और बात करेंगे, और कभी बात करेंगे, किसी कोई मौजूद और कम से कम रख के आपसे लेके तो नहीं आइएगा, करूंगा। इल्म गैब पे आपसे बात मैं करेंगे डर कभी। गया। आपसे मेरे आवाज रिकॉर्ड करके सबको सुना दीजिए कि आपसे बिल्कुल मैं डर सुनाऊंगा गया। इंशाल्लाह। आपसे मैं डर गया, आपकी नहीं नहीं, काबिलियत मैं का मैं डरने को इकरार नहीं करता कहूंगा, हूँ। आप अपने मुंह से कुछ भी कहिए, मैं नहीं कहूंगा। हाँ, मैं ही कह रहा हूँ ना, मैं ही कह रहा हूँ, आपको नहीं कह। आप तो हैं ही बड़े। आप मैं नहीं कह रहा भैया, हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगा ऐसा, मैं सिर्फ डिबेट डाल दूंगा। जो भी हमारी डिबेट हुई है, जो भी अरे मेरे गुफ्तगू भाई, हुई है, आपको देखिए, मुझे मैं मजा तब आता, देखिए मुफ्ती साहब, मुझे मजा तब आता जब मैं और आप दोनों सुकून से बात करते। नहीं, तो आपका असल बात यह कि आपका मुकाबिल होना चाहिए, आपके जैसा इल्म वाला होना चाहिए। और देखिए, मैं हूँ फिर कैसा वही छोटा। बात कि आपके जैसा इल्म वाला होना चाहिए। देखिए, हाँ अपने अकीदे को साबित करना हाँ, क्या क्या करें, मेरे पास इतना बहुत इल्म ज्यादा नहीं है कि इल्म मैं की आपके सामने जरूरत है? साबित। और आप कह भी रहे हैं कि आप देखिए, साबित नहीं कर पाएंगे, और यकीनन हम आपके अच्छा, सामने नहीं एक पाएंगे। बात, जब आपके पास इतना इल्म नहीं था तो आपने आला हजरत को मुशरिक क्यों कहा था, जरा बताएं। और कहा हाँ? था तो फिर आपने साबित क्यों नहीं किया? बस कहा था भाई, हम कहते रहेंगे। और जो अगर है मैंने हम कहा, मैंने साबित किया कि थानवी जी काफिर हैं, मैंने साबित किया चलिए काफिर हैं। ठीक है, अब आप जीत गए, अब हो गया। अब अल्लाह ताला आपको जो है ना जज़ा खैर अता अच्छा, फरमाए। और ठीक कभी है, किसी मौजू पे बात करेंगे, इल्म गैब या हाजिर और नाजिर आपसे या हम किसी भी सत्य मौजू पे तारीफ नहीं पे? पाएंगे बात करने के लिए। आपसे हम किसी भी मौजू पे नहीं पाएंगे। हम इकरार करते हैं कि हम आपके सामने हार गए हैं। लिख लीजिए, आज अल्फाज मेरे नोट कर लीजिए। ऐसी बात मत कहिए यार। ठीक है, हम आज ही अच्छा आपसे। अच्छा, एक बात बताऊं, हाँ, सच्चे दिल से एक बात कह रहा हूँ, और सच्चे दिल से आप सुन लीजिए, ठीक है? बोले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कयामत में काम आएगी, या फिर आज के किसी मौलवी की मोहब्बत काम आएगी, या कल के किसी मौलवी की मोहब्बत काम आएगी? और मौलवी की मोहब्बत भी काम में आएगी, मगर रसूल पाक आप तो के रसूल पाक गुलाम की मोहब्बत काम में आप तो रसूल पाक की मोहब्बत को पीछे फेंक दिया, और मौलवी की मोहब्बत को आगे कर दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ, मौलवी की भी मोहब्बत काम आएगी, मोमिन की भी मोहब्बत काम आएगी, इमाम की भी मोहब्बत काम आएगी, इमाम के वुजू का पानी दिया हुआ भी काम आएगा, कि किसी इमाम को अगर वुजू करा दिया अरे वो मेरे काम भाई, मैं आएगा वो मैदान नहीं में। पूछ रहा हूँ। हम तो ये कह आएगा रहे या हैं नहीं कि आएगा? आपने ये रसूल हदीस पाक है, की। ये हदीस बता रहा हूँ कि अगर किसी का वुजू कराया किसी आलिम का, वो भी काम आएगा कि नहीं आएगा? बहरहाल भाई, आपसे और मैं अच्छा, ये बताइए, आएगा कि नहीं आएगा मैदान में? तंग आ गया, मैं आपसे तंग आ गया। बस आप, मैं तंग मतलब ये कि मैं हार गया। बस ये है कि हाथ जोड़ता हूँ, और मैं आपसे किसी भी मसले में, यकीन हो गया मुझे कि आपका इल्म इतना मजबूत है कि मैं आपसे किसी इतना भी मसले मजबूत में। नहीं है, जितने भी मेरे पास हवाले हैं मैं उसी बातों पे बहस करता हूँ, हाँ, जो आपके मिर्जा पास में बस। पुख्ता तरीके से उसका जवाब दे सकूं। हाँ हाँ, आपके पास मेरा बहुत जो पुख्ते। मेरा जो एतराज था वो इस आपके बात पर पास। था कि साहिल ने पूछा कि रसूल पाक के लिए लोग इल्म गैब का अकीदा मानते हैं, अकीदा रखते हैं, हुजूर के लिए इल्म गैब तस्लीम करते हैं। तो थानवी जी ने कहा कि जैसा इल्म गैब हुजूर को है, ऐसा इल्म गैब तो जानवरों, पागलों, बच्चों को भी है, इसमें हुजूर की क्या तखसीस है? बस इतने पे मेरा एतराज है। साहिल के सवाल पूछने पर एतराज नहीं, साहिल तो पूछ रहा है, वो कम इल्म है, उसको इल्म नहीं है, तो आलिम से पूछ रहा है, ठीक है? एतराज जो है वो आलिम पर है, पूछने वाले पर नहीं है, क्योंकि वो बेचारे को इल्म नहीं है तभी तो पूछ रहा है। और आलिम साहब क्या कह रहे हैं कि आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद नहीं हो तो दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज इल्म गैब है या कुल इल्म गैब। अगर बाज इल्म गैब ही मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है, यानी हुजूर की क्या तखसीस है, हुजूर की क्या खुसूसियत है, हुजूर की इसमें क्या बड़ाई है, क्या शान व अजमत है, वो ये कह रहे हैं। ऐसा इल्म गैब तो जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी हासिल है, ये मेरा एतराज है। जी हाँ।
एतराज आप ही का है, आपका ही मतलब है, आपका ही सब कुछ है, और आप हमसे बात करके जीत भी गए और इंशाल्लाह हर देवबंदी से आप जीत भी जाएंगे इंशाअल्लाह, यह अल्लाह का फजल व करम है। बड़े बड़े देवबंदी के आप परखच्चे उड़ा देते हैं। अब मुझे माफ करें, उलमाए देवबंद में कोई ऐसा बंदा पैदा ही नहीं हुआ जो थानवी जी को मुसलमान साबित कर दे। हाँ सही बात कि आपके सामने कोई साबित नहीं कर पाएगा, मुझे भी यकीन मेरे हो गया। सामने की बात नहीं है, हमारे जो बड़े बड़े उलमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझता, मैं तो अपने उलमाओं की खिदमत में रहता हूँ। तो इसलिए मैं आपको समझता हूँ ना, दूसरे के सामने पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लेकिन आप हमारे उलमा की तो बहुत बड़ी शान है। और मौलाना हाफिज एहसान साहब किबला आपसे बड़े हंस हंस के बात कर रहे थे, माशाअल्लाह बड़ा दिल खुश हो रहा था। और आपको भी डिबेट में देख रहा था, तो खैर पहली बात तो ये है कि आपका जो नेटवर्क था बड़ा कमजोर था, और पता नहीं क्यों देवबंदियों का नेटवर्क बड़ा कमजोर हो जाता है, आवाज नहीं आ पाती है। मगर आज तो बहुत अच्छे तरीके से बात हुई है माशाअल्लाह। मगर बस कमी एक हो गई, कमी एक हो गई, दोनों तरफ से बराबर बोलते रहे। मैं सोच रहा था मैं कहूंगा तो आप सुनेंगे, और आप कहेंगे तो मैं सुनूंगा, और मैंने हालांकि आपकी बात को सुना, मगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन मैं मान गया भाई, मैं मान गया कि मैं हार गया। अब मैं बताओ क्या करूँ। और बस इतना करिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के दोबारा से मुसलमान हो जाइए और देवबंदियत को छोड़ दीजिए, हाँ बस और अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी हनफी बरेलवी को इख्तियार कर लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बरेलवी तो नहीं, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता हूँ आपके लिए। आप मेरे लिए दुआ करना, ठीक है? चलिए मैं दुआ करूंगा आपके लिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के दुश्मनों से आपको बचाए और अपने महबूब की मोहब्बत आपके दिल में पैदा फरमा दे। चलिए जज़ाकल्लाह। और मरने से पहले पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत आपको अता फरमाए, मुसलमान बना के तो आपको इस दुनिया से ले जाए। पर अगर अभी सुधर जाएंगे तो लोगों को, हो सकता है कितने लोगों को आप सुधार देंगे। चलिए ठीक है। चलिए।